Welcome everybody, all the 9th standard students. Okay, so we have started the chapter sets 1.1. 1.1 we had completed the types of writing sets. There are two methods, listing method that called roster method. Number two is your property method, otherwise known as what? Set builder form. Exercise 1.2 में we had come across types of sets. Singleton sets. What is singleton set? A set which contain only one element is known as singleton set. Then I had completed your empty set. A set there is no element which satisfied the given condition is known as your empty set. Then I had completed your finite set. The set where the counting process is terminated is known as your finite set. Then we are started with the infinite set. The set where the counting process is not terminated is known as infinite set. Then we will do one more set is known as equal set. Equal set matlab what? For the two sets, if the elements are identical, if the elements are what? Identical, then they are said to be equal sets. Understood? Finite set, infinite set, equal set, empty set and what? Your null set. मतलब होगी मतलब एक singleton sets. What is singleton? A set which contain only one element. What is empty set? The set there is no element which satisfied the given condition. Finite set. The set where the counting process is terminated is known as finite set. What is infinite set? The set with the counting process is not terminated is known as infinite set. Understood? That was your revision of previous two lectures. Now student, in 1.3 we will come across universal set, Venn diagram and subsets. तो तीनों का मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ऑल ऑफ यू हैव द पेज नंबर 7. देखो पेज नंबर 7 के ऊपर उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा एक्सप्लेन किया है अबाउट Venn diagram. What is that? Venn diagram. What is Venn diagram? I am reading over here. The British logicians, टेक्स्ट बुक में देखो दिया है पेज नंबर 7. The British logician John Venn was the first to use the closed figure to represent the sets. जॉन वैन उसका नाम है, उसने इन्वेंट किया है. इसने इन्वेंट किया है टू रिप्रेजेंट द सेट्स इन द क्लोज फिगर्स. अभी तक हम लोग सेट्स को लिखते थे इन द टू फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म में लिखते थे, अदरवाइज प्रॉपर्टी में लिखते थे. बट जॉन वैन ने बताया इंस्टेड ऑफ राइटिंग लिस्टिंग फॉर्म, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन प्रॉपर्टी फॉर्म, वी कैन मेक अ क्लोज फिगर्स. उस क्लोज फिगर्स में हम लोग सेट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इज नोन एज सेट्स and such representation are called Venn diagram. एग्जाम में आ जाएगा define the following Venn diagram. What is the Venn diagram? A British logician John Venn was first to use to represent the sets in the closed figure, and such representation of data is known as Venn diagram. Venn diagram are very useful in order to understand and illustrate the relationship among the sets and to solve the examples based on the sets. Okay. Now I just give उसका जॉन वेन, उसका देखो उन्होंने एक स्नैप दिया है बाजू में. उसका क्या है ड्यूरेशन? इट 1834 से लेके 1883 तक है. जॉन वेन इज द फर्स्ट मैथमेटिशियन. जॉन वेन is the first mathematician who gave the mathematical form to logic and probability. उसने ये दो चैप्टर्स बनाए. कौन से चैप्टर्स? लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी. His famous book is Logic of Chance. So please remember for extra knowledge, उसका बुक का नाम है लॉजिक ऑफ चांस. देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4. उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है सेट a. अभी ए दिया है 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स दिए हुए हैं. तो वी कैन ड्रॉ द वेन डायग्राम. इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? वी कैन ड्रॉ एनी ओवल शेप बना सकते हैं हम लोग. 1 2 3 4 5 लाइक दिस. ओके. बट कौन सा सेट है? ए. तो मेंशन द नंबर ए. तो सेट ए लिखने का ऐसा ही उसका वेन डायग्राम है. दिस इज योर लिस्टिंग मेथड और उसका बन गया वेन डायग्राम बन गया है.
मैंने और एक दिया है देखो b, b में मैंने क्या दिया है x स्लैश x is more than equal to -10, x is more than equal to -10. What I'm telling, x is what? More than equal to -10 but less than equal to 0. लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए. तो व्हाट आर द एलिमेंट्स? तो एलिमेंट बताओ क्या क्या आएंगे? -10 से बड़े बट 0 से छोटे सब. तो क्या क्या आ जाएगा? -10, -9, -8 डैश 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 अप टू 0 तक सब लिस्ट हो गया. अभी इसका बनाओ वेन डायग्राम. वेन डायग्राम तुम लोग रेक्टेंगल में भी बना सकते हो. वेन डायग्राम यू कैन ड्रॉ इन सर्कल ऑल्सो. वेन डायग्राम यू कैन ड्रॉ इन ओवल शेप में भी बना सकते हो. तो मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है. तो कौन कौन से एलिमेंट्स देखो? -10 दिस ईयर, -10. ओके, थोड़ा गैप दे दो. -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 और दिस इज योर B सेट. ये B है अपना. So like this we can represent the data in the diagrammatic form is known as your Venn diagram. Are you got the concept of Venn diagram? John Venn was the first to introduce this concept. उसका फेमस बुक का नाम है लॉजिक ऑफ चांस. ओके, अभी इसके बाद आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन मोर concept. Are you getting the Venn diagram? What is the Venn diagram? Venn diagram is the diagrammatic representation of the given data. What is Venn diagram? Venn diagram is the diagrammatic representation of the given data. Okay. अभी इसके बाद we are solving student one more concept. Subset. What is that? Subset. Subset क्या होता है? I am telling you. Okay. उन्होंने डिफाइन करके देखो दिया है सबसेट का डेफिनेशन दिया है उधर. If A and B are two sets and every element of B is also the element of A, then B is a subset of A, which is symbolically written as A subset of B. Okay, I am telling you the explanation over here. Okay, see here. मैं क्या कर रहा है? A. मैंने लिखा A के अंदर 1, 2, 3, 4. And I have written over here B is equal to 4, 5, 1, 8, 2, 9, 6, 10. ओके, हाँ. अभी देखो A में कौन से एलिमेंट है? A कंटेन 1, 2, 3, 4. A में कौन से एलिमेंट है? वी हैव 1, 2, 3, 4. B में कौन कौन से? 4, 5, 1, 8, 2, 9, 6, 10 and we can take one more element. We can take 3 also here. Okay, तो देखो मैंने अभी A के एलिमेंट 1, 2, 3, 4 B में है. 1, 2, 3, 4 मतलब A के सब एलिमेंट B के अंदर है. Therefore A is a सबसेट ऑफ B. इसको बोलते हैं सबसेट. ये जो सिंबल बनाया है, ये सिंबल जो है ना उसको बोलते एक C लेने का, उसके नीचे लाइन ड्रॉ करने का, इट इज कॉल्ड सबसेट. तो व्हाट इज A के एलिमेंट B के अंदर है, therefore A is a subset of B हो गया. बट B के एलिमेंट A के अंदर है क्या? नहीं है. B के एलिमेंट कौन कौन से है? 5 is not there, 8 is not there, 9 is not there, 10 is not there and E. Therefore B is not a subset of A. Got it? इधर क्या लिखा? A, how to read? A is a subset of B. Why? Because A के चारों एलिमेंट B के अंदर है. Therefore A is a subset of B. But B के एलिमेंट A के अंदर नहीं है. That is why B is not a subset of A. Understood everybody? So this is called subset. This is called not subset. So with the help of this, we are solving your exercise 1.3 Venn diagram and subset. और एक है यूनिवर्सल सेट, दैट आई विल टेल यू व्हेन द सम्स आर कमिंग बेस्ड ऑन दिस. यूनिवर्सल सेट मतलब डिफरेंट कंसेप्ट है, दैट विल सी द क्वेश्चंस व्हेन इट्स कम ओवर हियर. ओके, सो एवरीबॉडी पेज नंबर 11 सम नंबर फर्स्ट 1.3. ओके, तो 1.3 देखो.
ओके, सो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ए में दिया है ए बी सी डी ई। ए में क्या दिया है? ए बी सी डी और ई, ए के एलिमेंट है। व्हाट इज बी के एलिमेंट? सी डी ई एफ। बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? सी डी ई एफ बी के एलिमेंट है। और सी के एलिमेंट बी और डी है। सी के एलिमेंट कौन से हैं? बी और डी है। और डी के एलिमेंट्स वी हैव ओनली ए एंड ई है। और बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने का अपने को। हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देखो दिया है, C is a subset of B. C is a subset of B. अभी C के एलिमेंट कौन से देखो, C में कौन से दो एलिमेंट है एवरीबॉडी? तो C contain the elements, come on. Okay, so now see here, C में कौन से है? BD. वो B में है क्या? खाली D है इसमें, B इसमें नहीं है। देखो C is a subset of B. C को दोनों एलिमेंट B में होने चाहिए। तो C में से B एंड D, तो D खाली है, B नहीं है, तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या बनेगा? फॉल्स। गॉट इट? इट इज द स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, A इज अ सबसेट ऑफ D। व्हाट इज दैट? A इज अ सबसेट ऑफ D। देखो A के एलिमेंट्स A B C D E, D में है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इधर 5 एलिमेंट है, उधर 2 ही एलिमेंट है। So ultimately A B क्या बनेगा? This is your false statement. Then D is the subset of B. Third, D is a subset of B. D देखो A E और B में है क्या? नहीं है, A is not there, E is there. तो A B क्या बना? स्टेटमेंट false बन गया। Okay? Then B is a subset of A. Fourth, B is a subset of A. B के एलिमेंट C D E F, उसके अंदर है क्या? C D E F नहीं है, तो A B क्या बना? ऑल आर फॉल्स स्टेटमेंट ही आ रहे हैं। और लास्ट क्या देखो दिया है? C is a subset of A. C number 5, C is a subset of A. C के लिए B and D, yes, ये true बना. So this is true statement. Understood how we are computing true or false? देखो C is a subset of B. तो C के एलिमेंट इसके अंदर है तो true, नहीं तो false. Simple logic. Getting everybody? How? What was the subset implies? Your first question मालूम पड़ा? Shall I go for second question? Okay. अभी देखो number 2. Number 2 क्वेश्चन में क्या बोला उधर? टेक द सेट्स एक्स वाई दिया है एंड रिप्रेजेंट बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो उनको वेन डायग्राम चाहिए। अभी इधर क्या चाहिए? दे वांट हियर वेन डायग्राम। तो नाउ व्हाट इज योर वेन डायग्राम? टेलिंग यू हियर एक्स क्या है? एक्स स्लैश एक्स फर्स्ट, नंबर 2 उसका नंबर 1 क्या बोला है? एक्स इज अ एक्स स्लैश x belongs to natural number. X belongs to natural number and what? X is more than 7 less than 15. X is more than 7 less than 15 बोला है। So ये जो प्रॉपर्टी दी है उसको लिस्टिंग करो। So नेचुरल नंबर चाहिए 7 से बड़ा, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू हाउ मच? 14 तक जाएंगे, बिकॉज इधर इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। तो इसका बनाएंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम वी कैन ड्रॉ इन सर्कल, वी कैन ड्रॉ इन रेक्टेंगल, वी कैन ड्रॉ इन ओवल शेप में भी। तो कैसे भी बना सकते हैं हम लोग। अभी ओवल शेप में बनाता है मैं इधर। तो मुझे क्या क्या चाहिए? 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. This is my x. Got it? This is my Venn diagram. अभी इसका नंबर 2 क्या बोला है? y. y slash y belongs to n, but y is a prime number. क्या चाहिए इनको? y चाहिए। y slash y
belongs to n, y is a prime number. Y is a what? Prime number from 1 to 20. From 1 to 20. तो 1 to 20 के बीच के I want prime numbers. So come on, this is 2, 3, 5, 7, 11, 13, then 17, then 19. First listing करो, then draw its Venn diagram. अभी इसका बनाओ Venn diagram. तो you can draw again one more oval shape. तो क्या क्या एलिमेंट है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, और this is here y. Getting understood? So question is coming, write the Venn diagram वगैरह बोला था, वैसे किया हम लोगों ने उधर. Okay everybody, now see number third question क्या दिया है? ओके अभी थर्ड क्या देखो दिया है? U दिया है ना अभी U स्टैंड फॉर एवरीबडी यूनिवर्सल सेट. U क्या होता है? यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है. तो U में क्या देखो दिया है? थर्ड क्वेश्चन, U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. U फॉर एवरीबडी यूनिवर्सल सेट होता है. और P में दिया है 1, 3, 7, 10. एक P एलिमेंट दिया है 1, 3, 7, 10. एक P दिया हुआ है. हाँ, और बोला है शो द सेट U, P और P डैश बाय वेन डायग्राम. ओके, नाउ सी स्टूडेंट, U कितना दिया है? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. P कितना दिया है? 1, 3, 7, 10. अभी I want P डैश. डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. व्हाट इज डैश मतलब? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. मतलब क्या करने का? ये जो 1, 3, 7, 10 इसको इसके साथ कंपेयर करो. Now you write the element which are not in P. अभी कौन से एलिमेंट इसमें नहीं है? 1 is there, 2 इसमें नहीं है, तो 2, 3 is not there, 7 is there, 8, 9, 11 and 12. Got it? So now see, dash मतलब compare the given set with the universal set, or the elements which are not in the given set but that should be in the universal set, that is known as complement of sets. So this is P dash. What is P dash? I'm getting elements are not in P. इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 is there, तो 3 लिख नहीं पाएंगे हम लोग. 2 is not over here, 3 is there, 7, 9, 11, 12. Got it? So this is P dash. मालूम पड़ा डैश क्या होता है? डैश को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. डैश को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. तो शो द सेट्स U, P, P डैश बाय वेन डायग्राम. तो अभी इन तीनों को बनाएंगे वेन डायग्राम में. इसका अभी एक लाइन ड्रॉ करेगा. इधर अभी देखो, ये जो है अपना U, ओके, इसके अंदर एक बनाएगा एक स्क्वायर. हाँ, ये जो बनेगा अपना दिस इज P. P में क्या क्या है? 1, 3, 7, 10. 1, 3, 7, 10. और जो बाहर के एलिमेंट्स हैं ना, उसको शेडिंग करेंगे हम लोग. दैट इज नोन एज P डैश. कॉम्प्लीमेंट, उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट. विच आर द कॉम्प्लीमेंट्स? 2, 8, 9. दिस इज 2, 8, 9, 11. And anyhow you can write, wherever you can write. So we can show this question by using Venn diagram. तो this is U, मतलब एक बड़ा U बन गया, उसके अंदर P लिखा, और जो नहीं है P के अंदर वो बाहर लिखेंगे. That is known as complement of sets. Getting understood? Any confusion students? Complement मतलब क्या होता है? Compare the given set with the universal set
and the elements which are not in the given set but that should be in the universal sets, it is known as complement of sets. डैश को बोलते हैं complement of sets. Okay. Now उन्होंने क्या बोला है, उसका सेकेंड पार्ट, वेरीफाई P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P शो दैट करो. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. हाँ, ये इसका फर्स्ट बन गया. अब उसका सेकेंड बोला है, क्या बोला है, P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू P प्रूफ करो. तो व्हाट इज माय लेफ्ट हैंड साइड, P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट. तो मेरे पास स्टूडेंट P कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका वापस निकालने का है कॉम्प्लीमेंट. तो व्हाट आई एम डूइंग, तो आई एम अगेन कंपेयर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट विद द यूनिवर्सल सेट. तो दिस इज 2, 8, 9, 11, 12. इसको कंपेयर करेगा U के साथ. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट अभी नहीं है, 1 इज नॉट देयर, 3 is not there, 7 is not there, 10 is not there. So but student 1, 3, 7, 10 कौन सा एलिमेंट है, P है, that is P, that is my right hand side. Simple है. Got it? So this here P complement of complement. Is that clear to you? Understood what was the procedure? Okay student, got it? You got the first question, second question, third question. Okay. Now I am going to fourth question. उन्होंने क्या बोला है, A is equal to 1, 3, 2, 7 and write any three subset of A. Very very important question all the students. देखो इधर क्या दिया अभी, okay. Now what is over here, A is equal to 1, 3, 2, 7 दिया है. फोर्थ क्वेश्चन, A is equal to 1, 3, 2, 7 दिया है और बोला है राइट एनी थ्री सबसेट ऑफ ए. तो कौन से भी तीन लिखो, अप टू यू. तो एनी सबसेट, अगर मैंने एक लिखा 1, 2, आई राइट 1, 3, 7, आई कैन राइट 2, 7. बस देखो ए इसका सबसेट है, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R. I want any three subset. तुम लोग कैसे भी लिखो, ऑर्डर शुड बी एनी हाउ, नॉट रिक्वायर्ड. समझा? एनी कंफ्यूजन? ओके. नाउ सी नंबर 5, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स. एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन है. आई नीड ओनली सबसेट रिलेशन, कौन किसका सबसेट है. देखो उन्होंने क्या बोला है, P इज अ सेट ऑफ ऑल इन पुणे. P क्या बताता है, फिफ्थ क्वेश्चन, रेसिडेंट्स इन पुणे. रेसिडेंट्स इन पुणे, P फॉर पुणे के रेसिडेंट्स है. M फॉर रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश M. I फॉर इंदौर, I फॉर इंदौर के लोग. B फॉर इंडिया, उन्होंने क्या बोला है, द रेसिडेंट्स इन इंडिया. रेसिडेंट्स इन व्हाट, इंडिया. एंड H फॉर द रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र. रेसिडेंट्स इन व्हाट, महाराष्ट्र. तो उन्होंने बोला है राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स. देखो आई रिपीट, कौन किसका सबसेट है, P फॉर पुणे के रेसिडेंट्स, M फॉर मध्य प्रदेश के रेसिडेंट्स, I फॉर इंदौर के रेसिडेंट्स, B फॉर इंडिया के रेसिडेंट्स, H फॉर महाराष्ट्र के. सो वन बाय वन जाएंगे. देखो इसमें देखा जाएगा ना, इंडिया, इंडिया एक्ट एज यूनिवर्सल सेट. वाई इंडिया, बिकॉज इस सब पुणे, मध्य प्रदेश, देन इंदौर, महाराष्ट्र सब किस में आने वाले हैं, इंडिया के अंदर आने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फाइंड आउट which is your universal set. तो B is your universal set होने वाला है. तो अल्टीमेटली देखो आई एम टेलिंग यू, जो लोग पुणे में रहते हैं अल्टीमेटली दे आर लिविंग इन महाराष्ट्र ऑल्सो. सो व्हाट वाज द फर्स्ट रिलेशन, P is a subset of H. Are you agree with me? The people who are living in Pune ultimately they are living in Maharashtra also. That is why
P is a subset of H. Are you agree with me? One more question. Ultimately जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं वो लोग इंडिया में भी रहने वाले हैं. So क्या मिलने वाला है? Second possibility. So H is a subset of I. अदरवाइज P भी बनेगा. जो लोग पुणे में रहते हैं वो महाराष्ट्र में है. अल्टीमेटली जो लोग महाराष्ट्र में है वो जो इंडिया में, मतलब पुणे भी इंडिया में आने वाला है. दैट इज वाई व्हाट इज योर थर्ड रिलेशन? दैट इज पुणे इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, इंडिया. अभी फोर्थ, इंदौर एंड मध्य प्रदेश. ओके, इंदौर कम्स इन मध्य प्रदेश. सो व्हाट, जो लोग इंदौर में रहते हैं अल्टीमेटली दे लिव्स इन महा इंदौर, दैट इज मध्य प्रदेश में आ जाएगा. ओके, एंड फाइनली वो लोग इंडिया में भी रहते हैं. सो आई एम कमिंग, मध्य प्रदेश कम्स इन इंडिया ऑल्सो. सो लाइक दिस वी कैन गेट सो मेनी सबसेट रिलेशन. ओके, और बाद में क्या बोला है? विच सेट कैन यू रिटर्न एज अ यूनिवर्सल सेट. तो कौन सा सेट रहेगा यूनिवर्सल सेट? इंडिया. इंडिया इज रिटर्न एज universal set. India is written as which set? Universal set. Understood? मतलब पुणे, मध्य प्रदेश, इंदौर, महाराष्ट्र कहाँ आने वाले हैं? इंडिया में आने वाले. तो that means India is known as your universal set. Get it everybody? Understood? Now see your sum number 6. Mark the IMP question. Sum number 6. Sum number 6 क्या देखो दिया उन्होंने? Set which the numbers could be the universal sets of a given number. A क्या दिया है? Set of multiple of 5. A क्या है? Which question? 6. Multiple of 5 चाहिए उनको. क्या चाहिए? Multiple of 5. Set of multiple of 5. तो 5 के multiples 5, 10, 15 dash dash dash. Okay? हाँ. B what? उन्होंने क्या बोला? सेट विच नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन नंबर्स. तो अभी ए जो है, सो स्टूडेंट वी आर द 3 नंबर्स. नंबर कौन कौन से होते हैं? एन, डब्ल्यू होता है. एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर होता है. सो नाउ सी उन्होंने क्या बोला कि वो नंबर जो गिवन सेट है वो किस किस का यूनिवर्सल सेट हो सकता है, वो उनका क्वेश्चन है. सो नाउ व्हाट इज ओवर हियर? दे आर गिविंग ओवर हियर एंड डब्ल्यू. अपने पास 3 नंबर होते हैं. एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, आई फॉर इंटीजर. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0. इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं, 0 होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. तो देखो अभी 5, 10, 15 नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं. दे आर कम इंटीजर ऑल्सो. देयरफॉर A is a subset of N, A is a subset of W, also A is a subset of I. Natural number, whole number and integer. मतलब वो natural का भी हो सकता है सबसेट, whole का भी हो सकता है, अदरवाइज integer का भी हो सकता है. B मल्टीपल ऑफ 7. बी क्या दिया है? फर्स्ट हो गया. नंबर 2 क्या है? बी क्या है? मल्टीपल ऑफ 7. सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7. तो 7 का टेबल 7, 14, 21 डैश डैश डैश. तो सेम. तो बी इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, B is a subset of integer also. Getting? C भी क्या दिया है? Set of 12. That also same, multiple of 12, natural number, whole number and integer also. तो वापस P, set of integers which are multiple of 4. सब questions मतलब उसका second part भी वही है. So all are the subsets of N, W, I. मतलब natural numbers, whole numbers and integers. T क्या दिया है? सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर्स. सेम पॉसिबिलिटी, सेट ऑफ इवन स्क्वायर्स. T के बारे में
सबसेट ऑफ इवन नंबर के स्क्वायर्स, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 16, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, मतलब ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स आते हैं ना, दे आर होल नंबर्स ऑल्सो, they are also whole numbers, they are also integers. So same thing, t is the subset of n, t is the subset of w, t is the subset of integer. Getting? So like this we have to simplify. Okay. So 7th question जो है that is not in the syllabus. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इन 1.3 में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया आज? 1.3 में we will come across universal set, we will come across subset and we will come across Venn diagram. तो अभी एक लास्ट एक्सरसाइज बाकी है 1.4 that we'll see afterwards. 1.4 में we will come across 2-3 types of different kinds of relations. वो हम लोग बाद में देखेंगे. तो 1.3, 1.1, 1.2, 1.3 तीनों आज 1.3 कंप्लीट किया है. As you get this lecture, you can solve all the questions 1, 2, 3, 4, 5, 6. And send me as homework immediately. Okay everybody, so come on, as you get this lecture तुरंत solve करो और मुझे तुरंत भेजो. And thanks once again for seeing this lecture honestly and sincerely. Come on, copy it on this.